Everyone, I am Neetika and today I am here to take your class on FEG 02, that is Foundation of English Part 2. That's your subject in BCA for SEM, and we are taking this online class because of the COVID-19 pandemic that is there spread in our country, in the world. So let us start with the main content. So first of all, I'll tell you the whole syllabus that is being covered under this subject. So we basically have 3 blocks or rather 4 blocks in this FEG 02, and each block is divided into 6 units. Okay, so I'll be covering each unit and each block for you, and I'll explain the major points. And then afterwards we can have a session on Zoom that I have scheduled it for the days, like for tomorrow it is from 10:30 to 11:30. You can always log in and we can have a session on that. Alright, so let us first understand the block 1, the major things that are being covered in FEG 02. So we have paragraphs, we have composition, we have note taking, and we have report writing. Now paragraphs you must have done. आप लोगों ने अपने 10th में 12th में if you have done your schooling, so paragraphs एक बहुत ही common चीज है जो हम जब हम एक word लिखते हैं और word से मिलके एक sentence बनता है और फिर sentences से एक idea बनता है, and that's called a paragraph. So paragraphs पे हम थोड़ा बात करेंगे, and then we will talk something about composition. Now composition can be further divided into 4 types. The first type being argumentative. इसके अंदर composition के कुछ parts होंगे. Then narrative composition, descriptive composition, and expository composition. So these are the 4 parts of composition. Then we have note taking. Now you would think कि अरे ये इतना important क्या है? Now notes हम सब ने बनाए हैं बचपन से अभी तक. Normally especially in school life, college life, हमारी आदत होती है कि मैम बोल रही होती हैं और हमें फटाफट अपने पॉइंटर्स लिखने होते हैं. तो हमने ये सब किया हुआ है, लेकिन उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं, that will also be covered under note taking. And then finally we have report writing. Some of you might have done it, some of you might have not done it. Now under report writing also there can be different types of reports. Reporting events, reporting meetings and speeches, then reporting interviews, reporting experiments, and reporting surveys. Okay, now these are the major things that will be covered in all the 4 blocks and 6 units. Now I'll take one by one everything so that you can better understand that what is the idea. So the first topic that is there is paragraph. पैराग्राफ हम सबको पता है कि एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक होगा, एक आइडिया होगा जिस पर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, एक आइडिया अपना देते हैं. लेकिन पैराग्राफ अच्छे फॉर्म में कैसे बनाएं, पैराग्राफ एक अच्छा पैराग्राफ क्या है वो जानना जरूरी है. सो क्या प्रॉपर्टीज हैं एक अच्छे पैराग्राफ की? वन इज कोहेजन एंड द अदर थिंग इज पंक्चुएशन. ऑलराइट, देन वी हैव इलस्ट्रेशन, वी हैव डिस्क्रिप्शन, we have cause and effect, and then we have comparison and contrast. Now ये जो मैंने points आपके लिए लिखे हैं, these are the points जो unknowingly हम एक paragraph में cover तो करते हैं लेकिन हमने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया. For example, if I ask you to write a paragraph on COVID-19, maybe कि अभी आजकल का लेटेस्ट थिंग है कि यूपी के अंदर कोविड-19 का क्या चल रहा है और उसके बारे में आप मुझे एक आर्टिकल लिख के दो, एक पैराग्राफ लिख के दो. हाउ वुड यू गो हेड एंड डू इट? सो पहले आप उसका हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दोगे कि आखिरकार ये होता क्या है, जो आपका टॉपिक है इसको आप इंट्रोड्यूस करोगे. देन यू विल रिलेट इट इन द बॉडी. इंट्रोडक्शन के बाद आप एक बॉडी, उसका एक कंटेंट लिखोगे, एंड लास्ट में उसका एक
कंक्लूजन दोगे, राइट। लेकिन हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोविड-19 की बात करते करते यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आईपीएल, यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स। ऐसा नहीं है। हमें कोई भी, हम अगर एक पैराग्राफ में बात कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ में हमारी सारी चीजें रिलेटेड होती हैं, राइट। नाउ दैट रिलेशन इज कॉल्ड कोहेजन। जब एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई होती हैं, बॉन्डेड होती हैं, तब हम उन्हें कहते हैं कोहेजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत बड़ा सा एक एस्से लिखा जा रहा है तो पैराग्राफ चेंज हम तब करते हैं जब हमारा आइडिया चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एस्से शुरू किया कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। सो पहले पैराग्राफ में मैंने व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग एक्सप्लेन किया। तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि सोशल नेटवर्किंग की क्या डेफिनेशन है, right? I will only tell the definition. I am not going into details of social networking, or I am not going into details of disadvantage or advantage. I am just telling what is social networking. In the second paragraph maybe I will tell about the advantages. तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैं सिर्फ डेफिनेशन रखूंगी। तो इसीलिए हर पैराग्राफ के अपना एक आइडिया होता है, अपना एक रिलेशन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड कोहेजन। आई होप I am making sense. Okay. Now second is your punctuation. Very important guys. जब भी आप पैराग्राफ को लिख रहे हैं तो कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे सेमी कोलन आना चाहिए, कोलन आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पैराग्राफ में अपना आइडिया दे रहे हैं तो कहां पर उस पर्टिकुलर लाइन को एंड करना है, वहीं पर आप फुल स्टॉप दे सकते हैं। किसी भी गलत जगह पर अगर आप पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं तो उसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। सो दैट इज व्हाई आई हैव टू टेक केयर ऑफ द पंक्चुएशन एज वेल। नाउ इलस्ट्रेशन. Illustration means the examples. Like I said that if I am making, if I am writing an essay on social networking, तो मैं उसके बाद आने वाले पैराग्राफ्स में उसके एग्जाम्पल्स भी दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल लाइक कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर सोशल नेटवर्किंग एक एडवांटेज है, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ये जो अभी हम कर रहे हैं, वी आर एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। हम इसको यूट्यूब पे डाल सकते हैं, हम इसको फेसबुक पे डाल सकते हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। नाउ आई एम गिविंग द advantages, I'm giving the examples, so that's called illustration, जहां मैं example के थ्रू explain कर रही हूँ। The other thing is description. जो भी चीज आप समझाना चाह रहे हैं उसे काफी डिटेल में आपको बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बता रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग के एडवांटेजेस, आपने ये तो कह दिया कि सोशल नेटवर्किंग इज वेरी एडवांटेजियस, पर क्या आपने उसके पॉइंटर्स बताए? तो आपको उसके अंदर एक एक पॉइंट बताना होगा, डिस्क्राइब करना होगा कि यस सोशल नेटवर्किंग इज एडवांटेजियस इन दिस पॉइंटर्स में आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। कॉज एंड इफेक्ट, दैट मीन्स आपको उसका एक्शन और रिएक्शन भी बताना होगा कि अगर सोशल नेटवर्किंग में ये चीज की वजह से इसकी जरूरत पड़ी, जब लोगों ने देखा कि अगर हमें घर से बैठ के कोई काम करना है और किसी तक पहुंचाना है तो तब जरूरत पड़ी सोशल नेटवर्किंग की। किसी से बात करनी है जिसे हम अभी मिल नहीं पा रहे हैं या वो कहीं दूर रहता है तो जरूरत पड़ी सोशल नेटवर्किंग की। सो यू हैव टू टेल द कॉज एंड देन व्हाट वाज द इफेक्ट यू क्रिएटेड। People created things like Facebook, people created things like WhatsApp. So cause और effect दोनों चीज आ गई। Comparison and contrast, this is simple. You are trying to compare social networking. Maybe आप social networking के different examples ले सकते हैं, उनको compare कर सकते हैं, वो time compare कर सकते हैं कि जब social networking नहीं थी और जब है। So I'm just giving an example out of these topics. So these are the major pointers of paragraphs. Okay, now let's go to our second topic, and which is composition. Now, what is a composition and what is the difference between paragraph and composition? Actually, paragraph is only a part, right? Composition is a bigger thing. Composition एक पूरा कहानी है, पैराग्राफ सिर्फ उसका पार्ट है।
बहुत सारे पैराग्राफ से मिलकर एक पूरा एसे या कॉम्पोजिशन बनता है ना। कॉम्पोजिशन पिक्चर कॉम्पोजिशन भी होता है, राइट। आप एक पिक्चर दी हो और उससे देखकर आप एक कॉम्पोजिशन, एक एसे लिखते हैं। सो ऑल दैट इज देयर। ना मेजरली जैसे मैंने आपसे बताया था कॉम्पोजिशन किस किस तरीके के होते हैं। एक होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, द सेकेंड वन वॉज एक्सपोजिटरी in no order. Third one was narrative, right? And fourth one is descriptive. Now these are the major types of composition that we have. Now when I say argumentative, ये बहुत हद तक एक डिबेट काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन है, जहां पर आपको एक टॉपिक दिया है और उसका प्लस और माइनस पे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था सोशल नेटवर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो ये एक आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक है। तो ऐसी जगहों पर हम जब ऐसे लिखते हैं दैट्स कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव, जहां पर हम किसी चीज का प्लस बता रहे हैं और माइनस बता रहे हैं, वहां पे हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव। एक्सपोजिटरी मतलब जहां पर हम काफी सारी डिटेल्स, डेटा दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होगा जहां पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं। आपके नॉर्मली जो आप लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स के रिपोर्ट्स बनाए होंगे, है ना, तो वहां पर जब आप एक एक्सप्लेनेशन पूरी देते हो ना कि ये डेटा मैंने बनाया, इससे इन वैल्यू से ये डेटा बना, तो ऑल दैट डेटा काइंड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी। नरेटिव इज समथिंग इमेजिनेटिव लाइक योर स्टोरीज, ठीक है। तो आपने बचपन से अब तक बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, तो वो स्टोरीज में जो आपको कॉम्पोजिशन दिखता है, या फिर आपको बहुत सारा अभी आपने 10th में या 12th के बोर्ड्स में भी आता है, पिक्चर दी रहती है और उससे देख के आपको कॉम्पोजिशन बनाना होता है। दैट्स ऑल्सो यू आर यूजिंग योर क्रिएटिव थिंकिंग फॉर डिजाइनिंग अ कॉम्पोजिशन, सो वो कहलाता है नरेटिव कॉम्पोजिशन। इसके अंदर हम क्रिएटिव थिंकिंग यूज करते हैं, जबकि इन सब में हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीके के थिंकिंग प्रोसेस है हमारा, एक लॉजिकल और एक क्रिएटिव। सो नरेटिव में हम हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग यूज करते हैं, जबकि आर्ग्यूमेंटेटिव, एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव में हम क्रिएटिव नहीं, बल्कि डिस्क्रिप्टिव में कुछ हद तक क्रिएटिव हो सकता है। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? वेयर यू डिस्क्राइब अ प्लेस, अ पर्सन, ओके, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग अ पर्सन, मे बी अ प्लेस, तो वहां पर एक डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको अपनी सिटी के बारे में बताना है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं, आप अपनी सिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहां के लोगों के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में, तो दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉम्पोजिशन। एंड नाउ द थर्ड टॉपिक दैट इज कवर्ड इज notes. Okay, now this is not a very rocket science related topic, लेकिन अगर हमें प्रॉपरली ये पता हो कि नोट्स को किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं, तो नोट टेकिंग विल बी अ वेरी गुड थिंग। ओके, नाउ when you are making notes, there are certain things that you have to keep in mind. One is the reduction devices that we keep in mind. Now all these things you will find in your books that probably you will have for this subject. Okay, so this is one. Then you have, so reduction devices is one through which you make notes. Then you have use of tables and diagrams. ठीक है, आप टेबल और डायग्राम के थ्रू भी नोट्स बनाते हैं, ठीक है। एंड व्हाट एल्स? सो नोट्स और किस तरीके से हम कवर अप करते हैं। नाउ लेट्स सी रिडक्शन डिवाइसेस में क्या क्या चीजें आएंगी। इमेजिन कीजिए आपकी क्लास चल रही है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वो वाला टाइम याद कीजिए जब मैम, आपके सर या मैम आपको फटाफट कुछ भी बोल रहे होते हैं, and then you are just noting it down in your notebook. So they tell you that the temperature increases when the pressure decreases, blah 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 whatever. Now when they are speaking, आप फटाफट कैसे लिखते हो? Temperature increases, pressure decreases. Okay, so reduction, composition. This is the way you do it, right? बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से बनाया होगा। Now ये जो आप कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एब्रीविएशन। आप छोटा कर दिया, आपने रिड्यूस कर दिया टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि आप एकदम से तो सारा कुछ जो वो बोल रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट, राइट? सो व्हाट यू डू, यू
tend to take short symbol kind of a thing, so you did it. Now increase के लिए आपने ये symbol दे दिया, decrease के लिए आपने ये दे दिया, और भी मैथमेटिकल सिंबल्स आप यूज करते रहते हैं. हाँ, इंक्रीज, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, व्हाटएवर. फिर रिडक्शन के लिए मैं एन ऐसे लिख देती हूँ, कॉम्पोजिशन के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू डू व्हाइल यू आर मेकिंग नोट्स. ऑल दिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवाइसेस, जहां पर आप जब नोट्स बना रहे होते हैं तो बाद में पढ़ने के लिए आपको समझ आ जाता है कि ओके, दीज वर द थिंग्स दैट वर टोल्ड टू मी बाय माय लेक्चरर और बाय माय ट्रेनर. Okay. Now, the second thing was about the note taking is the table use of table and diagrams. तो जब आपको चीजें बताई जा रही होती हैं कि सपोज कि भाई जब टेम्परेचर 2.3 था तो प्रेशर हो गया था 350 समथिंग. ना ये वाली चीजें आपके लिए अच्छा क्या रहेगा कि आप फटाफट एक टेबल बना लें, सब वैल्यूज लिख लें और उसको मेंशन कर दें. इसको करने से आपको आराम से समझ में आ जाता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो क्या आप एक पैराग्राफ फॉर्म में रिपोर्ट लिखते हैं? व्हेन द टेम्परेचर वाज 30 डिग्री सेल्सियस, द प्रेशर वाज दिस. नो, यू डोंट डू लाइक दैट. व्हाट यू डू, यू क्विकली मेक अ टेबल. उसमें आप 2 पॉइंट्स रखते हैं, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर. यहाँ पे टेम्परेचर देते हैं, आप प्रेशर देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर देते हैं, एंड इट इज डन. ग्राफ बनाना है तो उसको ऐसे दिखा देते हैं कि भाई ये टेम्परेचर था, तो ये प्रेशर था, ये था. तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है. यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये डायग्राम देख के बंदा समझ जाता है कि यस, दिस इज हाउ वी हैव टू गो. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग नोट्स व्हेन taking notes using tables, diagrams and reduction devices. Okay, now the next thing that is there in your course curriculum is report writing. Okay, now I am just telling you the basics. I have, as I told you earlier also, that the other things we can cover it in detail in your Zoom classes where if you want to attend and you have any doubts you can ask them. So report writing क्या है? Basically report writing होता क्या है? रिपोर्ट का नाम जैसे ही सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक तो डॉक्टर वाली रिपोर्ट, करेक्ट, और एक न्यूज वाली रिपोर्ट आता है ना. जब हम न्यूज देखते हैं तो एक वो न्यूज रीडर कुछ कुछ बोल रही होती है, दैट इज रिपोर्टिंग दैट शी इज डूइंग और ही इज डूइंग. और डॉक्टर्स पे हम जब बहुत सारा क्लिनिकल टेस्ट कराते हैं, मेडिकल टेस्ट कराते हैं, तो उस पे जो एक निकल के आता है, दैट इज ऑल्सो अ रिपोर्ट. सो अगर हम एक डेफिनेशन देना चाहें, so report is nothing but a tabular form or a very simple form to explain things, right? तो रिपोर्ट राइटिंग भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, करेक्ट. ओके, नाउ नंबर 1 वुड बी रिपोर्टिंग एन इवेंट. नाउ दिस इज इजी. सपोज कीजिए आपको किसी इवेंट को रिपोर्ट करना है. मे बी एक सेलिब्रिटी आपके कॉलेज में आए और उन्होंने एक एक आपके यहाँ गैदरिंग थी और उसमें उन्होंने अपना एक जस्ट ही केम फॉर हिज प्रमोशन ऑफ हिज मूवी एंड देन ही वेंट. सो उनका जो एजेंडा था वो था प्रमोशन ऑफ हिज मूवी. ठीक है, तो मूवी का प्रमोशन करने बेसिकली लोग जाते ही हैं. तो मान लीजिए ये एक इवेंट है जो आपको कवर करना है, तो ये रिपोर्टिंग है एक तरीके की जो हो रही है. नाउ देर इज अ फॉर्मेट टू डू इट. आप उसमें प्रॉपर फॉर्मेट यू कैन सी इन योर बुक्स, बट व्हाट विल यू बी कवरिंग हियर? आपको प्रॉपरली हर एक डिटेल यहाँ कवर करनी होगी कि कितने बजे सेलिब्रिटी आए, उन्होंने किन किन चीजों पर बात की, उस पर पब्लिक का क्या रिएक्शन था, तब जाकर के वो एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़पेपर इफ यू हैव रेड और यू हैव रेड एनी आर्टिकल जहां पर अच्छे से सारी डिटेल्स दी होती हैं, वी टेंड टू रीड दैट. सिर्फ इतना ही लिखा हो कि भाई यहाँ फलानी जगह पर रिपोर्ट, तो दैट इज ओनली अ हेडलाइन. लेकिन अगर मैं उस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना चाहती हूँ तो मेरी सारी चीजें टू द पॉइंट होनी चाहिए कि भाई टाइम क्या था, ठीक है, एजेंडा क्या था, राइट, कितने लोग थे वहां, लमसम क्या पॉपुलेशन था वहां का, कितना टर्नओवर था वहां पे, कितने लोग आए हुए थे, है ना, फिर उन्होंने किन किन चीजों पे बात की. तो ऑल दैट शुड बी कवर्ड इन रिपोर्टिंग ऑफ events. Okay, now the second kind of report could be reporting of
some meeting or speech. ओके, तो ये भी एक तरीके की रिपोर्ट हो सकती है, रिपोर्टिंग ऑफ मीटिंग एंड स्पीच. नाउ ये कैसी होगी? मीटिंग मीन्स ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप कल को जॉब भी करेंगे. तो जॉब्स में कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, जिन मीटिंग्स को हमें कवर करना होता है, एंड विच इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग, राइट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिपोर्ट. इसमें करते क्या है कि जैसे मान लीजिए 10-15 लोगों की मीटिंग हो रही है, तो उसमें से कोई एक बंदा होगा जो स्क्राइब होगा. Scribe means a person who will be who will be noting down all the points that are discussed in the entire meeting. तो वो सारे points को discuss करेगा, है ना, सारे points को लिखेगा. तो उसका काम होगा सिर्फ लिखने का. तो ये minutes of meeting जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ऊपर यहाँ पर डेट डालते हैं, यहाँ पर पहले हम हेडिंग डालते हैं minutes of meeting. उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं कि एजेंडा क्या था मीटिंग का, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स बताते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, डेट बताते हैं मीटिंग की, है ना, और उसके बाद हम एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं. हम लिख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, और जिसने जो भी पॉइंट बोला होता है वो सारे पॉइंट का नोट कर लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग ऑफ अ मीटिंग. ये हो जाती है विच इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑल्सो. अब स्पीच की रिपोर्ट बनानी है. कोई नेताजी आए भाई किसी एरिया में, और उन्होंने सपोज कीजिए कोई प्रमोशनली कह लीजिए, या वोटिंग के टाइम पर बहुत सारी, इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारी स्पीचेस होती हैं नॉर्मल. अब उसको कैसे कवर करें? तो उसको कवर करने के लिए भी अगेन इट्स अ काइंड ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स ओनली. तो आपने अगेन उसमें सारे डिटेल्स, कोई भी कंट्रोवर्सी उसमें कवर ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कुछ छोट-पोट घटना हुई हो, लेकिन उसको आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू कवर द मेजर थिंग्स, जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक गोल ओरिएंटेड हो, वही चीजें आप इसमें कवर करें. ये आपकी रिपोर्ट का एजेंडा होना चाहिए, ठीक है. देन वी हैव अ थर्ड काइंड ऑफ रिपोर्ट विच इज रिपोर्टिंग ऑफ सम that's called reporting surveys and experiments. So one is reporting surveys and one is reporting events. Okay. Now सर्वे क्या होता है? नॉर्मली जब किसी चीज का सर्वे का मतलब ये भी होता है कि आप एक बंच ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं किसी गोल के लिए. फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज कीजिए इस वक्त पेंडेमिक चल रहा है, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे हो कि भाई कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने नहीं हैं, तो वो एक सर्वे करेंगे, राइट. सर्वे कैसे होगा? कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल हर जगह जाएंगे, वो सब लोगों से बात करेंगे, लेकिन अब इसकी एक रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी. सो दैट इज वाई इट हैज टू बी फैक्ट रिलेटेड. यहाँ पर आप कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, जब आप इवेंट्स के बारे में रिपोर्ट लिख रहे थे तो आप थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते थे. वहां आप कुछ अपनी फ्लारी सी लैंग्वेज यूज कर सकते थे कि नाउ वी हैव द स्काई इज द लिमिट एंड नाउ दिस सेलिब्रिटी इज एंटरिंग, और उस तरीके का आप कुछ भी एक दो पंच लाइन्स दे सकते हैं. लेकिन जब आप सर्वे को रिपोर्ट करेंगे, सो यू विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइन्स और समथिंग. आपको एग्जैक्टली जो डेटा आपने लिया है वो आपको डेटा फॉर्म में, यहाँ पर एक्सेल के फॉर्म में या फिर बार ग्राफ के फॉर्म में दे देना है. दैट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग सर्वे. सो बेसिकली ये बार फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, ठीक है ना, इस तरीके का, है ना, ये सारी चीजें होती है रिपोर्टिंग करना सर्वे करना. अब मान लीजिए दूसरा जो हमारा है वो है रिपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट्स. दिस यू हैव डन मेनी टाइम्स. जब आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो उसमें भी आप अपनी रिपोर्ट्स बनाते थे. आपने ध्यान नहीं दिया, पर जो आप फाइल में एक दूसरे से कॉपी कर रहे थे ना, दैट वाज एक्चुअली अ रिपोर्ट ना. तो उसमें भी आप सारी रिपोर्ट बनाते हो, आप उसमें अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हो, देन आप उसके अंदर रिजल्ट जो आता है, बीच में फाइंडिंग्स होती हैं जो आप लिखते हो, राइट. सो वो भी एक रिपोर्ट है. अगेन ये भी फैक्ट बेस्ड होती है. जितना भी आपने एक्सपेरिमेंट से जो भी रीडिंग्स ली हैं वो सब कुछ फैक्ट बेस्ड होगा, इसमें कुछ भी इमेजिनरी नहीं होगा, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द reporting. Now the last topic that is there in your the entire FEG 02 is writing the summary.
Okay, so the assignments that you will get, you will also get this question. You will be getting a paragraph and then you will have to write a summary on this. So basically आपको एक दो तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं जहां आपको टाइटल देना होता है या फिर समरी देनी होती है या फिर कई बार आपको नोट्स बनाने होते हैं. तो इन्हीं सब पर आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट इतना नहीं है. तो समरी भी एक बार समझ लेते हैं. समरी ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया है. जब आप ऐसे लिखते थे तो उसके अंदर 3, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले होता था हमारा इंट्रोडक्शन, राइट. देन वी यूज टू हैव आवर बॉडी, द कंटेंट, एंड लास्ट में होता था कंक्लूजन. ठीक है. तो दिस वाज द होल आइडिया ऑफ वन एसे और अ कॉम्पोजिशन. समरी क्या चीज होती है? व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द होल आइडिया इन फ्यू वर्ड्स, तो आप कम शब्दों में उस पूरे आइडिया को समझा रहे हैं, जिससे कि सिर्फ समरी पढ़ के बंदा ये समझ ले कि अंदर क्या बात हो रही है, मतलब पूरे उस आइडिया में क्या बात हो रही है. तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम में भी वो सिर्फ समरी पढ़ के बाद में इंटायर रिपोर्ट पढ़ लेगा, लेकिन पहले अगर सिर्फ समरी पढ़ लेगा तो उसको ये समझ आ जाएगा कि अंदर क्या क्या बात हुई है. तो समरी में फिर हम क्या क्या पॉइंट्स देंगे? हम यहाँ पे मेजर पॉइंट्स सिर्फ देंगे जो कि हमारे पूरे उसमें डिस्कस हुए हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था सोशल नेटवर्किंग के बारे में. तो समरी में वी कैन एक्चुअली गिव वन लाइन अबाउट द सोशल नेटवर्किंग डेफिनेशन, देन द अदर लाइन वी कैन गिव अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड द लास्ट लाइन कुड बी एन एग्जाम्पल, एंड देन finally a line where you can give your opinion about social networking being the good thing or the bad thing. तो आपने 3-4 लाइनों में पूरे सोशल नेटवर्किंग को समझा दिया. So this is called the summary. Okay, now these are the major topics. I'll just rewind once. So number 1 was your paragraphs. Okay, number 2 was your composition. Okay, then number 3 was your notes taking, and number 4 was your reports, and 5th one was your summary. Your all the blocks, you have 4 blocks, 6 unit each, have all this content जो कि थोड़ा थोड़ा डिटेल में सब दिया हुआ है. आप I'll request you go through the material, and if you have any queries you can get back to me. We will be having classes for another 5 days. From 15, 16, 17, 18 and 20. 1 hour we'll have classes. So you can always log into the Zoom ID. I have already forwarded you on the group. And then if you have any problems regarding all this, you can always ask me. Okay, that will be all from my side. Thank you so much. Stay safe, be at home, and please go through all this. Thank you.